सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਰਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜਵੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਏਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਏਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸੁਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਕਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹੁ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰੋ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਹੈ ਬੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤੇ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤਵਾਰ ਨ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
केते अगणत नहीं विचारो, केते खप टुटै बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केते दुख भूख सदमार, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਭੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਾਂ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਏ, ਲਖ ਹੋਵੇ ਲਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਏ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ,
केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काड़त कड़िया है रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोट आनंद, सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सिधा की सुध, कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लो, करै आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत न अंत, तिथै लो अलो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आप पछाणिए
है कसम का, खस्म सबको खस्म सबको सब कोई है खस्म का, खस्म सबको है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव, आगे क्या है? निर्वैर। ये परमात्मा के गुणों में से एक सबसे श्रेष्ठ गुण है, निर्वैर, किसी से भी बैर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी से भी बैर नहीं, दुनिया जिसे दुश्मन कहती है उससे भी बैर नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तीर पर सोना क्यों लगाते हैं? बैर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहते हैं दुर्योधन को मार क्योंकि वह धर्मी है और उससे बैर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल है, हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने, संतों ने एक चीज़ बार बार याद दिलाई कि मन में किसी के लिए बैर मत रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैर कब होता है? जब सामने वाला बुरा दिखाई दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस शब्द में गुरु रामदास जी समझा रहे हैं कि बुरा न दिसे कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे तो कोई बुरा लगता ही नहीं। आज सिमरन में जितने प्रमाण लिए, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मुझे अपने में कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती, दूसरे में बुराई नहीं दिखाई देती। और हम कैसे हैं? अपने में बुराई नहीं दिखाई देती, दूसरे में अच्छाई नहीं दिखाई देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उल्टे हैं, बिल्कुल उल्टे हैं हम। और अगर इससे मिलना है तो ये गुण चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे मिलाप होना तो चलो अंतिम लक्ष्य है। जीवन में शांति चाहिए मन को, तो ये गुण चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वरना सब कुछ होते हुए भी इंसान अंदर ही अंदर जलता रहता है बैर भावना से कि मैं छोड़ूंगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी बड़ा कीमती वचन किया करते थे। कहते थे जिससे लेनी है तुमने, देख के वो कोई वापस नहीं देते ना, या किसी ने हक मार लिया, लेना है, उसके ऊपर केस करके रखते हैं कि छोड़ेंगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे जिससे लेने हैं उसे माफ़ कर दो, दे दो तो ठीक है, मन में मत रखो। फॉर्मेलिटी के लिए जो करना है करो, कोर्ट में भी जाओ फॉर्मेलिटी के लिए,
पर मन में बैर रख के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज युद्ध के मैदान में जाते हैं पर बैर रख के नहीं। फ़र्क है शरीर का इन्वॉल्व होना और मन का इन्वॉल्व होना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते तो जिससे लेना है उसे माफ़ कर दो और जिसका देना है जाकर माफ़ी मांग कर दे कर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे जन्म मरण छूट जाएगा। बैर भावना रखने से आना पड़ता है। शॉर्ट में दास समझा रहे, बीच में पहलू आ गया कि जिससे समझो आपने किसी से लेना है, बाबा नानक सिंह जी के बचन, छोड़ूंगा नहीं करके मर गया, उसे देने अगर आना पड़ेगा तुझे लेने भी आना पड़ेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तेरी मुक्ति होने वाली भी है नहीं होगी क्योंकि तूने रखा है मन में कि लेना है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। माफ़ कर दे, तू मुक्त हो जाएगा। देने वाले के देते ताकि तुझे देने ना आना पड़े, कम से कम लेने तो ना आना पड़े। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पॉइंट यहाँ पर ये है, बैर भावना बुरा। सब कोई है खस्म का, खस्म सबको होए। हर एक जीव खस्म प्रभु का ही है, उससे ही सब है। फरीदा खालिक खलक में खलक बसे, रब माही मंदा किसनो आकी जाती से बिना। जब उसके बिना कोई है ही नहीं तो बुरा किसको कहूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंदा किसनो आकी जाती से बिना कोई ना है। गुरु रामदास जी इसी अवस्था की बात कर रहे हैं। सब कोई है खस्म का, खस्मो सबको होए। हुक्म पछाणे खस्म का, ता सच पावे कोई। जो जीव खस्म का यानी कि प्रभु का हुक्म को पहचान जाए, उसका हुक्म है निर्वैर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि बुरा मत देख, दूसरे की बुराई मत देख। दास ने पहले भी कहा था महापुरुषों के वचन, जब हम किसी की बुराई देख रहे होते हैं, एक बुराई कर रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी तो इससे भी बढ़कर कहते हैं, मेरा मित्र केवल वो है जो इस अवस्था को पाले। सिर्फ ये कबीर सब थे हम बुरे, कहते हैं सबसे मैं बुरा हूँ। हम था जो भलो सब कोई, मुझसे श्रेष्ठ सारे अच्छे हैं। जिन्हें ऐसा कर बूझा, जिसने इस बुझारत को, इसको बूझ लिया, इस पहेली को बूझ लिया, जिसने समझ लिया इसको, इस ज्ञान को, मेरा मित्र केवल वो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्हें ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। कबीर जी कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए हमारे गुरुओं ने वाणी उच्चारण की, वाणी जो दर्ज की केवल उनकी की है जिन्होंने कोई भी अवगुण गिनाते हुए दूसरे पर उंगली नहीं उठाई, अपने पे लिया है। हम अवगुण परे एक गुण नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे नहीं कहा तुम अवगुण भरे, नहीं, हम जिनमें विनम्रता है, जिसने इस गुण को पा लिया उनकी वाणी दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा सृष्टि के मालिक क्या कह रहे, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु रामदास जी, बुरा न दिशा कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा दिव्य गुण है और जो इस गुण को अपनाना शुरू कर दे उसकी लाइफ इतनी सेटल हो जाती है, कलेश मुक जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़े किए होते हैं, अवगुण दिखते हैं सामने वाले में। अगर जब दूसरे में अवगुण देख रहा हो तो एक मिनट शांति से बैठकर अपने बारे में विचार करें। क्या कहते हैं फरीद जी, आपने गिरवान में सिर निवा कर देख। एक बार अपने गिरवान में भी झाँक ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम दूसरे पर दोष लगा रहे होते हैं, एक उंगली उठाते हैं, 3 उंगली हमारी तरफ होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 उंगली हमारी तरफ है कि तूने क्या क्या किया देख ले। जिस चीज़ के लिए दूसरे को दोष दे रहे हैं कि हमने वो नहीं किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाली हम पकड़े नहीं गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बुरा न दिशा कोई। यह अवस्था दिव्य गुण है प्रभु का। जो मूल मंत्र का जाप करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, ये गुण उनमें आना शुरू हो जाता है। बुरा ना, 1 सेकंड के लिए गुस्सा आना और घंटों तक दिनों तक रहना बहुत अंतर है। क्रोध महापुरुषों को भी आता है, पर जैसे कहते हैं समुद्र पर लहर आती है ना, आई और गई, बस मन को समझा लेते हैं उसी वक्त। नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम पकड़ कर बैठ जाते हैं। कमी कहाँ है? क्योंकि हमारे भीतर भी तक नाम नहीं चला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर 2 पंक्तियाँ पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाते हैं।
बुरा नदी से कोई, 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 बुरा नदी से कोई। गुरमुख आप पछाड़िए, आप पछाड़िए, गुरमुख आप पछाड़िए, बुरा नदी से कोई, बुरा नदी से कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु। बुरा ना दिसे कोई, गुरुमुख आप पछाड़िए। गुरुमुख वो जो अपने भीतर के अवगुण देखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने पहचान, दूसरों को क्यों देख रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख मनमुख दूसरों के अवगुण देखेगा, गुरुमुख अपने देखेगा। मुझ में इतने अवगुण है वाहिगुरु, वाहिगुरु माफ़ी मांगता रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी के वचन है, चाहे रिद्धियाँ सिद्धियाँ जितनी मर्जी आ जाए, चाहे शक्ति सारी मिल जाए, तेरी अवस्था हो जाए, मुख से तू कहे और वो पूरा होने लगे, रोम रोम में सिमरन चलने लगे, पर हर रोज नित बार बार गुरु से माफिया मांगते रह कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक के बख्श ले, बस बख्श ले। क्योंकि खिन खिन भूलनहार हैं हम, खिन खिन, एक सेकंड हर सेकंड भूलनहार हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमारा हिसाब हो गया, चाहे कितना भी नाम जपा हो, नहीं छूट पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हिसाब ना करने का क्या तरीका होता है कि माफ़ी दे दो बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव चाहे कहीं भी शिखर पर पहुंच जाए, सिख मन विनम्र हो कि मैं कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बोलने के लिए नहीं, भीतर से, भीतर से मन झुक जाए। बहुत लोग कहते कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। पातशाह कहते तू अपने यहाँ से झूठ बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सच में ऐसा होता तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, तो तेरी ये अवस्था बन गई होती। कौन सी? श्रवण कीजिए। हे विश्व संसार तुम देख दे, हे हर का रूप है, हर रूप नदरिया, हर रूप नदरिया। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सच में ये अवस्था होती, तू किसी का बुरा नहीं सोचता, तो तुझे हर एक में फिर परमात्मा दिखाई देना शुरू होता, तुझे इंसान दिखाई ना देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, अगर तेरे मन में बुराई खत्म हो गई तो तेरी अवस्था भाई कन्हैया जी वाली हो जाएगी। दुश्मन में भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इससे भी बड़ी बात कहती है पातशाह, कहते हैं हर आदमी अपने दुखों से परेशान है। हम सब अपने दुखों से परेशान है, हर किसी को कोई ना कोई दुख है। कहते तेरे जीवन में से दुख खत्म हो जाएगा अगर तू ये गुण अपना ले। कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जीवन में से दुख ही खत्म हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, गुरु साहब जी कह रहे हैं, श्रवण कीजिए। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाए मीत। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाए मीत। पर का बुरा न राखो चेत,
पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाएगी। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु। पर का बुरा ना, तेरे चित्त में भी अगर किसी की बुराई नहीं आई, मन में भी, तेरे जीवन में से दुख खत्म हो जाएंगे। कितनी बड़ी दात है। आज हम दुखी हैं मतलब बुरा सोचते हैं, सिंपल है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं अपने के लिए, अपने आप को हम बड़ा अच्छा समझते हैं। अगर दुखी हैं तो बुरा सोचते हैं, अगर सुखी हैं तो नहीं सोचते। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, दान गुरु नानक। बहुत बड़ा गुण है, गुरु दे दे बस। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। गुरु भी कब देता है? जब वो इंसान कोशिश करता है किसी गुण को पाने की, तो फिर वो रास्ते खोलता है। मन जागृत तो हो कि हमें ये अवगुण है। सबसे पहले तो खुद को अनुभव हो, मन माने। अगर हम मानेंगे बीमार है तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो डॉक्टर इलाज करेगा। हम कहेंगे हम ठीक है, प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। तो डॉक्टर भी कहेगा जाओ फिर तुम ठीक हो। तो मानना है पहले कि हमें यह अवगुण है, फिर डॉक्टर को कहना है पातशाह कृपा कर इस बीमारी को दूर कर। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। अगर सारी बीमारियों के सारे दुखों की जड़ ये है कि मैं बुरा सोचता हूँ किसी के लिए, तो तरस कर मेरी सोच नेक हो जाए। जब हम किसी का बुरा नहीं सोचते तो क्या करते हैं? भला सोचेंगे। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। और एक कहावत है, कर भला तो हो भला, सबको पता है। ये तो है ही ना, जो देंगे वो मिलना है। एक बड़ी प्यारी घटना है, एक माता ने बताई कि कहते कि हमारे घर में काम करने वाली बाई, प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, सच्ची घटना, काम करने वाली बाई वो रोने लगी। तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो बताया कि मेरी जो काम करके कमाती हूँ, घर के बर्तन धो के झाड़ू कटका करके, मेरी सैलरी इकट्ठी होती है 5,000। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। मेरी बेटी को ऐसी बीमारी हो गई है, छोटी बच्ची को, कि डॉक्टर कहता है कि हर महीने 4,000 का खर्चा है और 2 साल तक दवाई चलेगी। हर महीने 4,000 का खर्चा है, 2 साल तक दवाई चलेगी। मैं कहाँ से करूँगी? अपने बच्चों को मरते हुए देखूँ? पैसे तो है नहीं। 5,000 कमाती हूँ, मुश्किल से घर चलता है। अगर 4,000 दवाई पर लगा दी तो खाएंगे क्या? प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। ये सोच के रो रही हूँ मैं क्या करूँ? प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। सारे बोलिए दान गुरु नानक। जिनको गुरु ने धन दिया है ना, शुक्राना किया करो। गरीबी क्या है, गरीब से पूछो। रोज़ तिल तिल करके मरना पड़ता है। इसलिए दास यादा करके जिनके पास धन नहीं है ना, उनसे बार बार कहता है कि अमृत वेला ज़रूर संभालो। गरीबी दिनों में कट जाती है, गुरु नानक चाहे तो। ये बाणी कहती है, हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुट्टे नहीं। जितना मर्जी खा ले, जितना मर्जी खर्च कर ले, किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी उसे, जो अमृत वेले उठ के नाम जप ले। करने के बाद संभाल भी लो। कुछ पाना है ना अपने, क्यों हमारे पास गुरु नानक हो। बाबा नंद सिंह जी बड़ी तारना करते थे। कोई आता था ना कि गरीबी है, कहते गुरु नानक किसी को कहते हो गरीब हो, कीर्तनियों के कहते हो गरीब हो। एक शब्द गुरु नानक उसकी सुनाओ भावना से, गरीबी कैसी? हर जी बोलिए दान गुरु नानक। सबसे पहले बेसिक नीड है पैसा। पेट भरा होगा तो नाम जपा जाता है। हर जी बोलिए दान गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं भूखे भगत न कीजिए, माला अपनी ले जा। मैं अपनी माला रख रहा हूँ, परमात्मा पहले मुझे भोजन दे। हर जी बोलिए दान गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं तो हम क्या हैं? पहले पेट भर लो, सब कुछ ले लो। बोलो मैं इसके लिए मांग रहा हूँ। आखिर में क्या कहा कबीर जी ने उस शब्द में, कि मैं ना ही कितना लो, हर चीज़ मांगी, हर चीज़। खटिया दे दे, रोटी दे दे, दाल दे दे, ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे। आखिर में कह के मैं ना ही कितना लब्बो कि नाम तेरा मैं फबो। मैं सब कुछ इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि मैं ऐशपरस्ती करना चाहता हूँ, मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि मन जोड़ के तेरा नाम जप सकूँ। कितनी बड़ी बात है।
कम से कम धन की टेंशन तो ना हो कि क्या होगा, कल कैसे खाऊंगा। मन आराम से शांति से नाम जप सकूँ, इसके लिए मांग रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भाई कह रही कि मैं इतनी गरीब हूँ कि 5,000 मेरी सैलरी है, 4,000 महीने का खर्चा, 2 साल तक डॉक्टर ने कहा दवाई देनी पड़ेगी और बीच में दवाई छोड़ नहीं सकते, तो जाके ये ट्रीटमेंट होगी जो बीमारी हुई है। तो कहने लगी मैंने सोचा इतनी गरीब है और मेरी अपनी बेटी बीमार है, मुझे पता है कि क्या अवस्था होती है माँ के मन की। मेरी बेटी में इससे कई गुना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बीमारी है, ऐसी बीमारी मेरी बेटी को लगी है कि मैंने सोचा जहाँ इतना खर्चा हो रहा है 4,000 और से। यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने अपनी काम वाली भाई से कहा कि तू चिंता मत कर, जहाँ मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए इतना खर्चा कर रही हूँ 4,000 में उसमें और ऐड कर दूँगी, मैं कैसे भी करके कर लूँगी, तू चिंता मत करी, बेटी की दवाई का खर्चा मैं कर लूँगी, तू चिंता मत कर। तो कहने लगे, उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसने क्या किया, क्या किया, भला कर दिया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे मौके हमें बार बार मिलते हैं जीवन में भला करने के, हमारी मर्जी होती है टाल दें कि कर दें। घर से बोलिए धन गुरु नानक। और उसका फल क्या है, कमाल है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आई 2 पंक्तियां पढ़ रही। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाए। गरीब की ना आशीष बहुत लगती है, गरीब की बद्दुआ भी बहुत लगती है, आशीष भी। गरीब को सताने के टाइम, उसका हक मारने के टाइम सोचा करो। बाबा नंद सिंह जी कहते थे गलती से भी मत किया करो, मत सता गरीब को, वो रो देगा, सुन लेगा उसका खुदा, तू जड़ से खो देगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसकी बद्दुआ है तो दुआ भी है। इसका चेहरा खिल गया, मन से चिंता दूर हो गई, दुआ निकल गई हृदय से। घर से बोलिए धन गुरु नानक। ये माता बताती है, कहती है उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, मैं हैरान रह गई। 6 महीने के बाद मैं अपनी बेटी का चेकअप कराने गई, जिसकी दवाइयाँ बहुत महंगी चल रही थी, महीने की बहुत ज़्यादा खर्चा था। तो डॉक्टर कहते हैं बीमारी तो है ही नहीं, दवाई किस बात की दूँ। चेकअप में वो जो बीमारी थी इतनी बड़ी, जिसका इलाज चालू था, जिसमें लाखों का खर्चा आता था, वो बीमारी गायब हो गई मेरी बेटी की, रिपोर्ट्स में से गायब हो गई। कल कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार चेकअप करा, अभी इतने सालों से दवाई चालू हो, तो कहाँ ख़त्म हो गई बीमारी। कहने की तब मेरा दिमाग ठनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो 4,000 मैंने उस गरीब को दिए तेरी बच्ची के इलाज के लिए, भगवान ने मेरी बच्ची भी ठीक कर दी, लाखों का खर्चा भी बचा दिया। बताओ, हर समय हमारे पास मौका होता है कुछ नेक काम करने का, पर देख के करना। दास ने बताया था, देख के करना, सही जगह बीज डाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। करना ज़रूर चाहिए। सामने कृष्ण जी एक बात कहते हैं, बहुत बार कहते हैं ये बात, वो बहुत बार कहते हैं, जब दान करने का मौका हो, कोई ज़रूरतमंद आपके सामने है किसी भी तरह का, और उससे इम्पॉर्टेंट कोई काम दुनिया में कहते हो ही नहीं सकता। वो किए बिना अगर तो चला गया कुछ और काम करने, तो तूने बहुत बड़ा एक मौका गंवा दिया। एक होता है ना, हमारे पास चॉइस होती है, अमृत तोले उठना है सबसे इम्पोर्टेंट है, पर अमृत तोले से ऊपर है ये। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिद्ध करके दिखाया था। एक सिख से नाराज़ हो गए थे बहुत, वो सेवा नहीं करता था संगत की अच्छे से, मैं शॉर्ट में दास बता रहा हूँ। तो बहुत नाराज़ हो गए थे, तो कहने लगे यहाँ से निकल जा, दूर हो जा। तो गलती मान गया अपनी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो उसने क्या किया, गुरु साहब जी को मनाने के लिए रास्ते में शबीर लगा के बैठ गया। डॉक्टर था, शॉर्ट में दास बताया था, डॉक्टर आया था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास और अपना दसवंध लेके आया था। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने कभी किसी गरीब का मुफ्त में इलाज किया कभी, क्योंकि अंतर्जामी थे, वैद्य था, चुप, सर झुक गया, कभी भी नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने निकल जाए यहाँ से, चेहरा मत दिखा, जिसने कभी सेवा नहीं की जिन हाथों ने, उस धन का मैं क्या करूँगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दसवंध प्रमाण ने क्या उसे निकाल दिया कि आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना।
वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से बहुत प्रेम करता था, पर एथिक्स नहीं थे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने क्या किया, जहाँ से संगतें अनंतपुर साहब को आती थी, रास्ते में एक शबील डाली। शबील दास आपको पॉइंट बता रहे हैं कि नेकी कितनी बड़ी है। नेकी नित्यनेम से भी ऊपर है। समझो मैं दरबार आ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कीर्तन करना है, संगत वेट कर रही है, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो मेरे भरोसे बैठा है कि मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँ, मैं यहाँ हूँ कि वहाँ जाऊँ, मेरी चॉइस है। उस वक्त वहाँ जाना चाहिए, ये छोड़ के भी। नित्यनेम से ऊपर है दूसरे की मदद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही साखी से पता चलता है, नित्यनेम सबसे ऊपर है, पर इससे ऊपर है ये। बहुत चीज़ें हैं जो इससे ऊपर है। माता पिता इससे ऊपर है। माता पिता को जरूरत है तुम्हारी और तुम उसे छोड़ के सत्संग में आके बैठे हो, कोई फायदा नहीं होगा। बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब कहते हैं, देखिए मोहम्मद साहब ने सारा जीवन क्या समझाया है कि नमाज अदा करनी हो तो ऐसा सिखाया है मुसलमानों को कि 5 वक्त की नमाज अदा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और नमाज अदा करते हुए तुम्हें कोई गोली भी मार दे, तुमने उठना नहीं है, तुमने जुड़े रहना है। बोलिए धन गुरु नानक। सबसे इम्पोर्टेंट है वो, और मुसलमान इसे निभाते हैं जो सच्चे मुसलमान हैं। तो हम मोहम्मद साहब भी कहते हैं नमाज का वक्त हो गया हो, सामने मस्जिद हो, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मस्जिद के दरवाजे तक पहुँचो, नमाज अदा करना शुरू कर रहा हूँ और मेरी माँ मुझे आवाज़ देती है, मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ के पास जाता हूँ। माता पिता को अगर तुम्हारी ज़रूरत है सेवा की, उस वक्त तुम यहाँ पे आ रहे हो, कोई लाभ नहीं। इंपॉर्टेंस क्या है वो समझना इस बात को। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मना कर दिया उस वैद्य को, मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा। तो वो रास्ते में उसने क्या शबील लगा ली कि जो भी संगत आ रही है उनको जल पानी खिलाए, पानी पिलाए रास्ते में, और कोई बीमार है कुछ है तो उसे मुफ्त में दवाइयाँ करे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा करे ताकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की प्रसन्नता मिल जाए। गुरु गोविंद सिंह महाराज से इतना नाराज़ हो गए, जब वहाँ से गुजरते ना रास्ते से, तो अपने सेवादार को कह के रखा था कि कपड़ा ऐसे करके चलो मेरे दर्शन ना हो उसे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। 4 सेवादार कपड़ा लेके जाते थे, गुरु गोविंद सिंह महाराज घोड़े से वहाँ से गुजरते थे ताकि वो दर्शन ना कर ले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। इतने नाराज थे क्योंकि गरीबों की सेवा नहीं करता था। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी शिक्षा है इसमें। फिर आखिर में शॉर्ट में दास ले रहा है क्योंकि प्रकरण दूसरा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को संगत आके बताती कि पाछा बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है। पाछा अंतर्जामी, बख्शनहार, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो क्या करता था, वो अमृत वेले उठता था, एक सिंहासन बनाता था। ये भी बहुत बड़ी जुक्ति है। एक सिंहासन मतलब जैसे एक बहुत ही प्यारा सिंहासन, एक बड़ी सी प्यारी सी कुर्सी रखनी, उसके ऊपर टॉवल बिछाना, फूल रखने, और मन में ये भावना रखनी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज यहाँ बैठे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और सामने बैठ के नाम जपना अमृत वेले, भावना बना के, आसन लगा के। ये आसन भक्ति बहुत सारे महापुरुष करते हैं। एक आसन रखते हैं खाली, बाबा अनंत सिंह जी ऐसे करते थे जब पाठ नित्यनेम करते थे। एक गुरु नानक देव जी का आसन, एक अपने गुरु का आसन, बाबा मार राम सिंह जी का। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और वो दोनों परतक होकर सुनते थे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो ये आसन बिठा के रोज अमृत वेले उठता था, पर मन नहीं जुड़ता था। क्यों नहीं जुड़ता था? गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था दर्शन नहीं देंगे। अब क्या हुआ, एक दिन आया अमृत वेले का समय, अमृत वेले का समय, प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रकट हो गए उस आसन पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गया, मन जुड़ गया चरणों में कि गुरु गोविंद सिंह जी आज प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। नाम जप रहा था, अमृत वेला नित्यनेम संभाल रहा था, देखकर इतना मन जुड़ गया, खुश हो गया। उस वक्त दरवाजा खटखटा बाहर, इम्तिहान था। हर से बोलिए धन गुरु नानक। दरवाजा खटखटा है तो, और कोई चिल्ला रहा है कि आप मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, दरवाज़ा खोलिए वैद्य जी। तो ये परेशान है कि पहली बार इतने समय बाद मुझे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं और बाहर कोई आ गया ज़रूरतमंद। फिर मन को समझाया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने नाराज़ तो इसी के लिए हुए थे ना कि मैंने गरीबों की मदद नहीं की थी। उठ के गया, दरवाज़ा खोला, सामने कहता कौन? कहता बहुत ज़रूरत है मेरी, पता नहीं बच्ची थी कि बीवी थी, तबीयत बहुत ख़राब है, आप चलिए। वो सोच में पड़ गया मैं क्या करूं, अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला का समय, नित्यनेम, पहली बार दर्शन प्रत्यक्ष हो रहे हैं। आसन पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हैं।
पर ये अपना डब्बा लेके चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जैसे ही देखकर वापस आया, सच में प्रत्यक्ष गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसका इंतजार कर रहे हैं। कहने लगे तू एग्जाम में पास हो गया, तेरा इम्तिहान था। अगर आज तू उस गरीब की मदद छोड़ के मेरे नितने में बैठा रहता तो फिर तुझे कभी दर्शन नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे गुरुओं ने कितना नेक और कितना पवित्र रास्ता बताया। हमको बताया है कि करना कौन सा समय क्या है। नितनेम सबसे इम्पोर्टेंट है, पर नितनेम से इम्पोर्टेंट कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरों की मदद, सिख तो बनाए दूसरों की मदद के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमी हमारे जीवन में है, वैसे जीवन नहीं रहे हमारे, इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि रोज एक गुण को सुनते हैं, अरदास करते हैं, पाचा दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लेने वाले लेकर भी जाते हैं, झोलियाँ भर के भी जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमी हमारे विश्वास में, कमी हमारे भरोसे में, बस और कुछ भी नहीं। विश्वास करना साथ गुरु साहब जी के हजूरी में बता रहा हूँ। मुझे तो ऐसे रोज़ ही मिलते हैं। 2 दिन पहले मुझे एक मिले, कहाँ से आए थे, कोई सेंटर था हमारा, सरदार जी मिले। बोले हमारे सेंटर से एक लड़की आई थी हमारे साथ, पहले आके गई, 10 दिन पहले यहाँ पे आई है। 10 दिन पहले कहती कैंसर था उसे, डॉक्टर ने कहा था नहीं बचेगी। यहाँ बैठी थी यहाँ पे, और यहाँ पे एक दिन कीर्तन सुन के गई है। एक दिन, इतनी दूर से आई, एक दिन कीर्तन सुना और चली गई। और जाके वापस इलाज कराना था, और डॉक्टर ने कहा था, उसने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा कि कम से कम मैं संगत में एक बार आके कीर्तन सुन जाऊँ। यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी तरह से आई, एक दिन आई और वापस चली गई। मैंने कहा कि उससे कहना कि वीडियो बना के डालें और आप भी बताओ वो जिन्होंने एक बात सुनाई। मैं सबसे कहता हूँ जिनके साथ घटना घटी हो, डालो। एक आदमी हज़ारों का विश्वास जोड़ेगा जो खुद अपने मुख से बताएगा। मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे शायद भाई साहब बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, वो खुद जब बताएगी तो पूरा विश्वास आता है, जिनको बेविश्वासों को भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं कि यहाँ से गई, वहाँ जाके इलाज कराने, डॉक्टर कहते हैं किस बात का इलाज करे, कैंसर तो है ही नहीं। कहने कि मैं हैरान हो गई। कहते हमें यहाँ बैठे हैरान हो गए कि कैसे हो सकता है ये। फिर एक टेस्ट, 2 टेस्ट, कई हॉस्पिटलों में कैंसर है ही नहीं। एक दिन आई यहाँ पे, झोली भर के ले गई, और उसके अगले दिन मुझे एक माँ आके मिली है। इतने सालों से अमृतवेला उठ रही है, पर बच्चे का कैंसर नहीं ठीक हो रहा। बोलिए धन गुरु नानक। अभी कमी कहाँ पे है? अभी दोनों हैं एक तरह से, विश्वास, भरोसा। मांगो गुरु से। अरदास में इसीलिए लिखा है कि भरोसा दान, ये बहुत ज़रूरी है। जिसे ये भरोसा आ गया कि गुरु झोली भर देगा, गोली झोली भर देगा, जिसे लगेगा भरेगा कि नहीं। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। फिर भरेगा कि नहीं, बस फिर ऐसे ही रह जाएगा। मैं इसलिए कहता हूँ भावना बनाया करो। जिस वस्त्र के रुमाले हैं ना, जिस रंग के, कि गुरु नानक पाशा यही वस्त्र बना के पहन के बैठे हुए हैं, यही हार डाला हुआ उन्होंने अपने गले में। ये गुरु नानक बैठा है। अपनी मन की अवस्था बनाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और जब प्रत्यक्ष गुरु नानक ही बैठा है, मान लो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे, कोई आम आदमी की पंक्तियाँ नहीं है ये कि गुरु ग्रंथ जी माने हो प्रगट गुरा की दे, ये शरीर है। जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में। प्रभु को मिलना है तो शब्द में खोज ले, पर सेवा देह जान के कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस औरत ने 4000 की मदद की, लाखों का खर्चा बच गया उसका। क्यों? भला कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भला कैसे आएगा? पहले बुराई तो खत्म हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेरी करे। आओ गाए, ये मन में बस जाए। एक बार दास, एक बार सारी संगत। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाए मीत।
तुमको दुख नहीं पाए मीत। न राखो तुमको तुमको दुख नहीं पाए मीत, पर का बुरा ना राखो चित। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है। एक बाबा, एक महापुरुषों के पास एक आदमी चला गया। ऐसे आते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ पर मेरे पास भी ऐसे आते हैं, हमारा सोना चोरी हो गया, बताओ किधर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं बोला मैं ज्योतिषी हूँ क्या? कहाँ है? किस लिए आते हो यहाँ पे? इसलिए मैं लोगों से मिलना ही पसंद नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सवाल वो पूछेंगे जो कथा में बता चुके हैं, और अगर कथा में नहीं सुना तो वहाँ मैं क्या समझाऊँ 2 मिनट में जो 2 घंटे में नहीं समझ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे बहुत लोग आते हैं जादू टोने के लिए, टोटके के लिए। एक महापुरुष के पास आ गए कि टोटका दे दो। मेरा अपना घर नहीं, मैं किराए पे रहता हूँ, घर मेरा अपना बन नहीं रहा, कोई टोटका दे दो मेरा घर बन जाए, यानी कि जादू टोना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष भी थे, कहने लगे काम कर, एक मटका ले, मटके को टेढ़ा करना है, पीपल के पेड़ पे रस्सी से ऐसे बांध देना मटके को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टेढ़ा करके रखना, एंगल ऐसे रखना। तो कहते मेरा घर बन जाएगा? कहने लगे बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चला गया वो, मटका लिया, रस्सी लेके टेढ़ा करके बांध दिया पेड़ पे, और 1-1.5 साल बाद वापस आया मिठाइयाँ लेके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फ्रूट लेके आया कि आपने क्या टोटका दिया है? मेरा घर बन गया। बन ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ से रास्ते खुल गए, धन भी आ गया, ज़मीन भी मिल गई, घर भी बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक टोटका बड़ा कमाल का था। तो कहने लगे मूर्ख, ये कोई टोटका नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कोई टोटका नहीं था, मैंने तुझे सिर्फ एक आइडिया दिया कि मटका ऐसे बांध दे, उसमें कोई चिड़िया कोई पक्षी अपना घर बना लेगी, अगर उसका घर बन गया तो तेरा घर भगवान बना देगा। ये कुदरत का कानून है, कोई टोटका नहीं है। तू किसी का भला करेगा, तेरा भला होना ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर हमें चाहिए टोटका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए पुराने ज़माने में कुछ रहती है ऐसी, मैं समझता हूँ आप भी समझ में आती हैं, कि कहते थे ना चींटियों को खिलाओ, मछलियों को खिलाओ, किसी बहाने से हाथ से कुछ निकले, भला तो तेरा हो ही जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई भी पुरानी जो रिवायतें हैं ना, कोई बेसलेस नहीं है, हर चीज़ के पीछे कारण होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बुजुर्ग जानते थे, ऐसे तो ये मानेंगे नहीं। पीपल का पेड़ बहुत ज़्यादा कीमती होता है, इसलिए फैला देगा, इसे जो काटेगा पाप लगेगा। कोई नहीं काटता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई हाथ नहीं लगाता पीपल को काटने के लिए। एक पीपल का पेड़ ही है जो मैंने सुना है, मुझे पता नहीं सच है कि नहीं, बहुत लोगों ने मुझे बताया, बड़े बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्ट लोगों ने, कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। एक ही पेड़ है, रात को भी ऑक्सीजन देता है, बाकी सारे पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एक पीपल का पेड़ जो रात को भी ऑक्सीजन देता है, और उसके पत्तों में कई बीमारियों का इलाज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बुजुर्गों ने सोचा अगर ऐसे कहा कि मत काटो तो रुकेंगे नहीं, फैला दिया कि इसे काटोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, कोई काटता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अच्छा किया जो उन्होंने किया। मुझे वो बात याद आ गई, मेरा एक दोस्त है, अब तो नहीं रहा, डेथ हो गई उसकी, वो करता ही ये था। चलो ये बात नहीं बताऊंगा। धन गुरु नानक। कई लोग शुरू हो जाएंगे ये करना। धन गुरु नानक। बुरा नदी से कोई, बुरा नदी से कोई, बुरा नदी से कोई, बुरा
महाराज गुरदास जी समझाते हैं कि अगर तेरे मन में बैर भावना नहीं है ना किसी के प्रति, तो तेरी हर जगह पे जीत होगी, किसी भी चीज़ में तू हारेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बड़ी दात है, क्योंकि तेरे मन में अगर बैर भावना निकल गई तो भगवान तेरे साथ आके खड़े हो जाएंगे तेरे हर काम में। वो तब ही रहते हैं साथ में जब बैर भावना ना हो। उसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने बड़ा प्यारा एक वार उच्चारण किया, श्रवण कीजिए। आप भला सब जग भला, आप भला सब जग भला, भला भला सब ना कर देखें। आप बुरा सब जग बुरा, सबको बुरा बुरे देने के। कृष्ण सहाय पांडवा, पाए भगत करतूत विसेखे। वैर भाव चित कैरवा, गणती गण अंदर का लेखें। बुरा भला परवनिया, पालन गई न दिष्ट सरेखे। बुरा न कोई युधिष्ठिर, दुर्योधन को पाल न पेखे। करवे होए सो टूटी रेखे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी कितनी कमाल के तरीके से समझाया है कि अगर तेरे मन में बैर भावना नहीं है तो गुरु नानक भगवान तेरे साथ आके खड़े हो जाएंगे, कृष्ण जी तेरे साथ आके खड़े हो जाएंगे तेरे हर काम में। दुश्मन तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। आप भला सब जग भला, ये सच्चाई है। जैसा रंग का चश्मा डालेंगे वैसे दुनिया दिखाई देती है। अगर मन में भलाई है, हर बंदा भला दिखाई देता है। मन में बुराई, हर आदमी पे डाउट होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुरा ही दिखाई देता है। दुर्योधन ने कृष्ण जी से कहा था, आप पांडवों को ज़्यादा साथ देते हो, उनका ही साथ देते हो, हमारा नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते उसके पीछे कारण है। कृष्ण जी कहते काम करो। युधिष्ठिर से कहते जाओ सारे नगर में एक बुरा आदमी ढूंढ कर लाओ। और दुर्योधन से कहते ये बात इसमें लिखी है। दुर्योधन से कहते कि जा एक नेक आदमी ढूंढ के ला। शाम को दोनों खाली वापस आ गए। दुर्योधन युधिष्ठिर को अपने से बुरा कोई दिखाई नहीं और दुर्योधन को नेक कोई दिखाई नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे पॉइंट दिया है, आप बुरा सब जग बुरा, सबको बुरा बुरे दे लेखे। कृष्ण सहाय पांडवा, भाई भगत करतूत विजय। कृष्ण जी कहते मैं पांडवों का साथ इसलिए देता हूँ, उनके मन में बैर भावना है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी नज़र में कोई बुरा नहीं और तेरी नज़र में कोई नेक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भला बुरा परवन्य, पालन गए ना दिष्ट से रेखा। बुरा ना कोई युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला। दुर्योधन ना भला ना भिख है, दुर्योधन को ढूंढ ढूंढ के थक गया, कोई भला आदमी नहीं मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर आखिर में कहा है करवे हो सो टूटी रेखा। बर्तन में जो डाला होगा वही निकलेगा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूध डालेंगे दूध निकलेगा, पानी डालेंगे पानी निकलेगा। अंदर बुराई है, बाहर बुराई ही निकलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, बाल भी बांका हुआ उनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ में आके खड़े हो गए, क्यों? बैर भावना नहीं है। प्यार से बोलिए। अर्जुन तो हाथ जोड़ दे, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैर भावना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसे कई पहलू हैं और देखते जैसे गुरु कराए। पर का बुरा न राखो चित।
नहीं पाए पर का बुरा न राखो चीर, काय पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे, नानक घर ही बैठे हैं सह मिले, जे नियत रास करे। ऐसे बोलिए दान करना। कितनी बड़ी बात कही यहाँ पे गुरु अमरदास जी ने। कहते हैं लोग अपने घर बार त्याग के पहाड़ों में जाके बैठ जाते, कमली फटी हुई पहन के, फटे हुए कपड़े होते हैं जोगियों के। कहते ये कुछ करने की जरूरत नहीं तुझे, साफ कह रही, घर बैठे तुझे प्रभु आके मिलेंगे घर में तेरे, तुझे जाना भी नहीं पड़ेगा कभी। नानक घर ही बैठे हैं सौ मिले, अगर तेरी नीयत तेरी ठीक है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काय पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे, नानक घर ही बैठे हैं सौ मिले, जे नीयत रास करे। अगर तेरे मन में किसी के लिए बुराई नहीं है, गुरु नानक तुझे खुद आके मिलेंगे घर में, बस तू अपना अमृत वेला संभाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साफ मन, साफ नीयत बहुत बड़ी दात है। देखो एक पॉइंट समझना, यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि दूसरे की बुराई दिख रही है, आदमी गलत है तो वो ना देखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सावधान भी तो होना है, पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लिया, दिखता है, ज्ञान है, हम भी बचपन से बड़े हुए, पता चल जाता है कैसे है। देखने के बाद जगह जगह फैलाते नहीं जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास में क्या आता है, जिन्होंने देख के अनिट किया, देख के भी अनिट कर दिया। दूसरों के अवगुण, जहाँ पे कचरा देखो उसे ढकते हैं, उसे फैलाते नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी के अवगुण देखे, शुक्र करो गुरु नानक तुझ में वो अवगुण नहीं है, उसके लिए अरदास कर, उसका अवगुण ठीक करे और उसे ढक दे। दूसरों को बता मत जाके, जब हम दूसरे को बताते हैं निंदा हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे उसके अवगुण नहीं ठीक होंगे। गुरु को अरदास कर, हाँ हो सकता है तू ज़्यादा निंदा करे उसका ठीक हो जाए, तुझ में वो अवगुण आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है, मैं नहीं कहता, हम जिस भी चीज़ की ज़्यादा निंदा करते हैं किसी एक आदमी को लेके, 100% ऐसा होता ही है, वो अवगुण हम में आ जाता है, होता ही है। करके देख लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखा, नजरें नीचे की, चुप कर गए, हर एक को फैलाते नहीं रहना है। अब इसमें भी दूसरे पहलू हैं कई, किसी का रिश्ता हो रहा हो तो क्या सच ना बताएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के, पॉइंट को समझो, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ किया करो। गुरु अंदर की भावना देखता है, भीतर की, बाहर से क्या बोलते हैं वो नहीं देखता गुरु। ध्यान से समझना। जो जी होए सो उगवे, मुँह का कया वाह, जो मन में है तेरे। तू जब किसी के बारे में बात कर रहा है, समझो तुमसे पूछा जा रहा है मैंने अपनी लड़की दी, ये लड़का कैसा, तुम्हें पता शराबी कबाबी गलत आदमी है। अब तुम कहोगे मैं निंदा नहीं करूँ, बुराई नहीं करूँ, भाई साहब ने कहा था नहीं, यहाँ पर सावधान करना है। पर भावना ये नहीं होनी चाहिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी गिरानी है। भावना सिर्फ इतनी होनी चाहिए, मन की भावना कि मैं इस लड़की का जीवन बर्बाद होने से बचाना चाहता हूँ। मन में ये भावना होनी चाहिए। तेरी भावना पे तेरा फल डिपेंड करता है। जैसी भावना तैसा फल, जैसी भावना तैसा फल, जैसी भावना, जैसी तेरी अंदर सोच है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाए। पर का बुरा न राखो चीत, दुख नहीं हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, रणवत नानक तारे सोने।
हम नहीं चंगे बुरा नहीं होए प्रणवत नानक तारे सोए प्रणवत नानक तारे सोए। से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना मुझे याद आ गई, एक साखी है, बड़ी प्यारी है, दास ने बहुत साल पहले शायद सुनाई थी। एक राजा है, रोज़ सुबह वॉक करने सैर को जाता है रोज, और एक तालाब के पास से गुजरता है, बगीचे हैं बढ़िया, और जहाँ से गुजरता है वहाँ पे बड़े प्यारे बगीचे, बड़ा प्यारा घर बना हुआ है किसी का, नदी के किनारे होता है ना, बहुत प्यारे घर होते कई बार। उसे हमेशा जाते हुए देखता है, बड़ा खुश होता है घर को देख के। वहाँ से जब मुड़ता है नदी के किनारे से, किनारे पे घर है, बगीचा है, बहुत खुश होता है रोज उस घर को देख के। ये रोज़ उसका नित्य का नियम है। आज जब जा रहा है तो अपने मंत्री को बुला के कहता है कि कल तक ये घर टूट जाना चाहिए। फिर बोलिए धन गुरु नानक, ये घर तोड़ दो। मंत्री हैरान होता है, क्या हो गया ये तो राजा तो इस घर की हमेशा तारीफ करता था, पर मंत्री बड़ा समझदार था, चला गया उस घर में। बुलाया, कौन है? घर का जो मालिक था, सेठ बाहर आया। अरे मंत्री जी आप हैं, आइए बैठिए। तो कहने लगे एक बात बता, समय नहीं है बैठने का, तेरे पर बुरा समय आ गया है, राजा ने तेरा घर तोड़ने के लिए कह दिया है। फिर बोलिए धन गुरु नानक। तो कहता क्यों, मैंने क्या किया? कहने का वही जानने आया हूँ। कहे मैंने तो कुछ किया नहीं, कोई अपराध। कहने मैं भी जानता हूँ तूने कोई अपराध नहीं किया, मैं जो जानता हूँ वो तुझसे पूछना है, मुझे सच सच बता, तू राजा के बारे में क्या सोचता है? फिर बोलिए धन गुरु नानक, सच सच बता, राजा के बारे में क्या सोचता है? कहता है राजा है, उसके बारे में क्या सोचूंगा? कहने नहीं, सच बता, अगर घर बचाना चाहते हो तो। कह लगे मैं ये सोच रहा हूँ राजा कब मरेगा। फिर बोलिए धन गुरु नानक, राजा कब मरेगा? कहने क्यों, ऐसे क्यों सोच रहे हैं? कहने के बीच में राजा बीमार हुआ था। कहने का हाँ, वैद्यों ने कह दिया था कि नहीं बचेगा। मंत्री कहने का हाँ। कहने मुझे पता था राजा को जलाने के लिए चंदन की लकड़ी लगती है, मैंने सारे शहर की चंदन की लकड़ी खरीद ली कि मुंह बोले भाव पर बेचूंगा। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, कि राजा मरेगा, चंदन की लकड़ी मिलेगी नहीं कहीं और, मैं बहुत जो चाहूँगा वो दाम पे बेच दूंगा, पर राजा बच गया। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर बच गया तो चंदन की लकड़ी मेरी इतनी महंगी मैंने ली है, मेरे सर पे आ गई है, मैं सोच रहा हूँ कभी मरेगा कभी चंदन की लकड़ी बिकेगी। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं बहुत बड़ी गलती की तूने, क्योंकि मन की तरंगे होती हैं, तू जब दूसरे का बुरा सोचता है, सामने वाला भी तुम्हारा बुरा सोचता है। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। और ये सच्चाई है, सच्चाई है, ये वाणी इसे प्रमाणित करती है। जब तुम दूसरे के बारे में बुरा सोचते हो, ऐसा हो नहीं सकता कि वो तुम्हारे बारे में बुरा ना सोच रहा हो, तुम उसके बारे में नेक्स्ट सोचोगे। इसलिए तो कहते हैं जब बुराई आए किसी के बारे में, पाठ करके अरदास करो उसके लिए, अच्छा उसका भला कर, आपके मन को तो उसी वक्त शांति आ जाएगी, उसके मन को भी शांति आ जाएगी। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहने लगे काम कर, तेरी चंदन की लकड़ी मैं बिकवा दूंगा, मैं मंत्री हूँ, मेरी पहचान है, तेरा नुकसान नहीं होगा। तो आज से ही राजा के लिए अभी से नेक सोच शुरू कर, उसके लिए यज्ञ करा, उसके लिए दान पुण्य करा राजा के लिए। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। नियत नियत के साथ उसने उस वक्त मन बनाया, उसी वक्त दान पुण्य शुरू किया। अगले दिन राजा वहाँ से गुजरा, देख के कहता है मंत्री जी मैंने कहा था तोड़ने के लिए, कहने लगा आज टूट जाएगा। नहीं नहीं रहने दो, मत तोड़ना। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब हम दूसरे का बुरा सोचते हैं हमारा बुरा होना ही है, जब हम दूसरे का भला सोचते हैं हमारा भला होना ही है। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाए। पर का बुरा तुमको दुख नहीं पाएगी।
बुरा न दिसे कोई, 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 बुरा न दिसे कोई। गुरमुख आप पछाड़िए, आप पछाड़िए, गुरमुख आप पछाड़िए, बुरा न दिसे कोई, बुरा न दिसे बुरा न दिसे कोई, बुरा न दिसे कोई, बुरा न दिसे कोई, बुरा न दिसे बुरा न दिसे कोई, बुरा न दिसे कोई, बुरा न दिसे कोई, बुरा न दिसे कोई, बुरा न दिसे गुरमुख आप पछाड़िए, आप पछाड़िए, गुरमुख आप पछाड़िए, आप पछाड़िए, बुरा न दिसे कोई, बुरा न दिसे कोई, बुरा न दिसे कोई, बुरा न दिसे कोई, धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे हमारे मन से बुराई खत्म हो जाए, किसी के बारे में भी गलत ना सोचे, बुरा ना सोचे, कर चाहे ना आ सके, मन में भलाई चले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और आज भला सोचेंगे तो भला करने के लायक भी बना देगा गुरु, पर बुरा ना सोचे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आती है किसी के लिए बुराई, बाबा नानक सिंह जी के वचन है, थोड़ा नाम जप के उसके लिए अरदास कर दो कि ये पाठ, ये जो 15 मिनट मैंने 5 मिनट मैंने जो नाम जपा है, वो सामने वाले के मन को शांति दे दे जो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जुगतियाँ अपनाया करो। आओ अब सब
सबके लिए भला भी मांग ले। नानक नाम तेरे पाने सर्बत दा भला। सत्य दा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत दा भला। जिस ते होवे तेरी कृपा जिसते होवे तेरी कृपा उस दे सर तो टले भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत दा भला। जिसते होवे तेरी कृपा जिसते होवे तेरी कृपा जिसते होवे तेरी कृपा उस दे सर तो टली भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत दा भला। सब कुछ है कर सकदा तू समरथ है सर्ब कला। समरथ है सर्ब कला तू समरथ है सर्ब कला। तू सब कुछ है कर सकदा तू समरथ है सर्ब कला। समरथ है सर्ब कला तू समरथ है सर्ब कला।
ते होवे तेरी कृपा, ते होवे तेरी कृपा, जिस ते होवे तेरी कृपा, उस दे सर तो टले बला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्बत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। सारे दरां नूं छड्ड के तेरे दर ते आया हाँ बाबा, सारे दरां नूं छड्ड के तेरे दर ते आया हाँ बाबा। झोली मेरी खुशियाँ भर दे, मेरी खुशियाँ भर दे, झोली मेरी खुशियाँ भर दे, मेहर नजर दी कर बाबा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्बत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्बत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नाम दी दात तू चोली पा दे, मैं भी नाम दा रस पीवा। मैं भी नाम दा रस पीवा, मैं भी नाम दा रस पीवा। नाम दी दात तू चोली पा दे, मैं भी नाम दा रस पीवा। मैं भी नाम दा रस पीवा, मैं भी नाम दा रस पीवा। निंदा तो तू आप हटा दे, निंदा तो तू आप हटा दे, मंगा मैं सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्बत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्बत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला।
माफ कर दे कई दाता, अपने वर्ग बना दे मैनू, अपने वर्ग बना दे मैनू, बुरे नाल भी भली करा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जिस ते होवे तेरी कृपा, जिस ते होवे तेरी कृपा, उस दे सर तो टली भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। तेरे पाने सरबत दा भला, तेरे पाने सरबत दा भला, सरबत दा भला। जिस ते होवे तेरी कृपा, जिस ते होवे तेरी कृपा, उस दे सर तो टले बना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। धन गुरु नानक। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की का गुरुगद्दी दिवस भी है, बहुत बड़ा दिन है आज। और देखो आज ही बात निकली, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है, आज के दिन उन्होंने हुक्म दिया था, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु को मिल वो चाहे खो शब्द मिले। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, 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 धन गुरु नानक। राम कली महला तीजा, आनंद क्योंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर का पाया सहज से मन वजिया वाधाया। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां।
सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरा तू सदा रो हर नाले। हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। नाम रंग रस स्वामी सुख मनो विसारे। करे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे। करता तेरे सब कुछ है जिलते सो पावे। सदा तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द तेरे। कहे नानक सच्चे सैल क्या नहीं घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो। साचा नाम मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा जिन फुका सब गवाइया। करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया। कुर्बान पिता गुरु मिटो जिसियाए वड्याइया। कहे नानक सुन लो संतो सबत रो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंज शब्द घर सुभागे। घर सुभागे शब्द वाजे कल्ला जी करतारियां। पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया। करम पाया तो जिनको से नाम हटे लागे। कहे नानक रस को आदित करे नदवाजे। अनंत सुनो बड़भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे। संताप करे सुनी सच्ची बानी। संत साधन पाए सबसे पूरे दुटे जानी। सुनते पुनीत कहते भविष्य सतगुरु रया पर पूरे। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनह तुरे सलो। अमन गुरु पाणी पीता। माता तक मात दूसरा बजाई खाया पहले सब सदात। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर। कर्मी आपो अपने जिन्नी नाम ध्याया। जिन्नी नाम ध्याया। जिन्नी नाम ते आया। जिन्नी नाम ते आया। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ओ वाहेगुरु 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 जिन्नी नाम ध्याया। जिन्नी नाम ध्याया। जिन्नी नाम ते आया। जिन्नी नाम ते आया। जिन्नी नाम ध्याया। गए मशक्कत काल। नानक ते मुखे फूल दे खेती छोटे नाल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में एक प्यारी अरदास। हे गुरु महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। हम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। आप हमारे हाथ पकड़ लो, हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा।
आप ही हमारा हाथ पकड़ लो, हमें अपना बना लो। हे गुरु महाराज, हम पर तरस करो, हमें अपनी सेवा से, सिमरन से, नित्य नेम से हमेशा जोड़े रखना। हमें कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना। हमें अपनी भक्ति का दान देना, श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शना, विनम्रता की दात बख्शना। हे गुरु महाराज, हमें 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमेशा दूर रखना। हमसे कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करवाना जो आप जी को अच्छा ना लगता हो। हे गुरु महाराज, हमें बख्श दो। हमारे इस जन्म के, हमारे पिछले जन्मों के, हमारे जानबूझकर किए गए, हमारे अनजाने में किए गए बुरे कर्मों को, गुनाहों को बख्श दो। अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो, हमें अपना बना लो। गुरु महाराज, हमारे बस में ये कुछ भी करना नहीं है, आप ही तरस करो और हमसे सब कुछ करवा लो। हम भूलनहार हैं और आप बख्शनहार हो। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।